Hi guys, it's Shriya here and welcome back to my channel, My Perfume Diaries. In today's video, I'm going to share a review for 4 new perfumes from Alabsar. Now, Alabsar is available on ScentopiaPerfumes.com, and in my haul, which I recently did, which was my first perfume haul from 2026 for all the Middle Eastern fragrances from Scentopia, I featured 4 fragrances from Alabsar. And in that video, I promised that I will kind of do a full-blown review on these 4 fragrances from Alabsar. So let's begin with today's video. I have to talk about 4 perfumes, plus I do want to kind of do a little bit of comparison of these fragrances with some other fragrances of similar scent profile. So don't want to make this video super duper long. So quickly, let's jump into it. Before we do so, make sure कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, you hit the bell notification and you follow me on Instagram. And now let's get started. Like I mentioned, all these fragrances are purchased from www.scentopiaperfumes.com. I have a non-affiliated discount coupon code for you guys to use on a minimum purchase of 2000 rupees. The coupon code is called Shriya5. I'm going to leave the details right here on the screen and you can go and avail that discount if you feel like. It's a non-affiliated discount coupon code. I am not earning a penny out of it. Feel free to use it or not. Alright, so the first perfume that I want to talk about from Alabsar is Shakur Elixir. I'm pretty sure you have seen this all over the internet. So many perfume reviewers are talking about that, especially in US. So many reviewers are talking about this particular variant. Got me excited, found these fragrances at Scentopia. I think only 4 fragrances from Alabsar are available at Scentopia and all 4 I have ordered. So let's begin with the first one. This is Shakur Elixir. This is how the box looks like. It's a textured box, white and golden, very beautiful and presentable and giftable as well. And once you see the bottle, you will exactly know ki, this is that viral fragrance that everyone's been talking about. So this is the bottle. It's so beautiful. You know, the packaging is just absolutely gorgeous and giftable. Has an ombre effect of white to golden and creaminess with a hint of milkiness in this. Just screams a lot about what the perfume is about. And नीचे की तरफ वो ऐसे रम या विस्की का जो ग्लास होता है ना, उसके पैटर्न टाइप का बना हुआ है. द बॉटल इज सो गॉर्जियस. ऊपर की तरफ बहुत ब्यूटीफुल गोल्डन, यहाँ पे एक स्टैम्प जैसा है, उस पर थोड़ा सा टेक्सचर बना हुआ है. ब्यूटीफुल बॉटल, मुझे बहुत पसंद आया. इसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 लगा मुझे. एंड ये वाला फ्रेग्रेंस अगर आप नहीं जानते हैं, दिस वन इज इंस्पायर्ड or a dupe of Dolce & Gabbana's Devotion. Now it's a lemony, citrusy, vanillic, sweet, creamy kind of a fragrance, and that's exactly what this scent profile is. इसके notes breakdown में we have lemon, caramel and rum, some milk and orange blossom, vanilla, amber, benzoin and musk. तो पहले मैं इसकी scent profile explain करूंगी, then I'll talk about the differences between the original Devotion and this one. Also, I want to cover a little bit of what Victoria is about from Lattafa, which is also an inspired version of Dolce & Gabbana Devotion. And इन दोनों के बीच में थोड़ा सा एक comparison भी बताना चाहती हूँ. So, सबसे पहले जो तीनों fragrances हैं, उनका feel similar है. You know, they open up with this kind of like candied sweet lemon. And then it becomes creamy, it becomes milky, white floral mixing up with some creaminess, and then your vanilla kicking in like an ice cream sort of situation. So it's more or less similar scent profile for all of these 3 fragrances. इसमें जो candied lemon का feel आ रहा है, वो sugar candied lemon का नहीं आ रहा, वो caramelized lemon का feel आ रहा है. It's like lemons dipped in caramel and then kind of put in some more sugar in it and then adding rum. So इसमें थोड़ा ज़्यादा sweetness है. प्लस इसमें रम के अलावा एक एडिशनल मिल्क नोट ऐड हुआ है व्हाइट फ्लोरल्स के साथ, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक, थोड़ा सा और क्रीमी, थोड़ा सा और स्वीट एंड ओवरऑल एक सॉर्ट ऑफ मस्की, क्रीमी, स्वीट, व्हाइट फ्लोरल, लेमन बेस्ड फ्रेग्रेंस लगता है. तो विक्टोरिया से अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ये थोड़ा सा और इलेक्ट्रॉनिक, थोड़ा सा और क्रीमी एंड थोड़ा सा और बूजी मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल सेंट प्रोफाइल. अब जो विक्टोरिया है लताफा का, इसके नोट्स में लेमन मरींग पाई ऐड हुआ है, जिसमें वो क्रीमीनेस और क्रस्टीनेस सब कुछ इंक्लूडेड है शुगर के साथ. प्लस इट हैज सम नेरोली एंड सम वेनिला. तो इसमें मेंशन ही नहीं किया है कि अलग से कुछ बूजी नोट है या अलग से कुछ है. और इसमें जो व्हाइट फ्लोरल्स है वो ऑरेंज ब्लॉसम नहीं है, इसमें जास्मिन नहीं है, इसमें हिंट ऑफ नेरोली है. सेंट प्रोफाइल थोड़ी सी अलग है. इसमें थोड़ा सा लेमन जेस्ट ज्यादा फील होता है. इसका जो MRP है 100 ml का, वो करीब 35.99 है और सेंटोपिया पे ये ऑलरेडी डिस्काउंट में 2099 रुपीज में मिल रहा है, जबकि लताफा विक्टोरिया इज स्टिल इन द 3K का रेंज. तो अगर आपको प्राइस वाइज
कंपेयर करना है तो शहूर एलेक्सर डेफिनेटली इज अ विनर। अगर आपको क्वालिटी वाइज कंपेयर करना है, दोनों की क्वालिटी अमेजिंग है, दोनों का प्रोजेक्शन, सियाज, लॉन्जिविटी सिमिलर है, which is around 7 to 8 hours of longevity. Projection and sillage is moderate to loud based on number of sprays that you go with. उसमें भी इनिशियल 1 आवर में प्रोजेक्शन दोनों का बहुत अच्छा है, उसके बाद प्रोजेक्शन फेड अवे होता है। तो दोनों का ही परफॉर्मेंस तो सिमिलर है, और 1 घंटे के बाद जो ड्राई डाउन है वो भी सिमिलर आता है। तो सिर्फ इनिशियल नोट्स जो है दोनों के अलग हैं, इनिशियल फील थोड़ा सा अलग है, ड्राई डाउन में दोनों एक जैसे ही स्मेल करते हैं। तो क्वालिटी वाइज दोनों ही कंपेरेबल है, प्राइस वाइज शहूर एलेक्सर बेटर है। और अगर आपको एक थोड़ा सा विक्टोरियन एंटीक बॉटल्स पसंद है तब इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, इसको तो बीट नहीं करते। ये बहुत ब्यूटीफुल दिखता है बॉटल, इसके कंपैरिजन में तो ये ज्यादा लैविश और ब्यूटीफुल दिखता है, एंड सो इज द प्राइस पॉइंट। सो टेक अ कॉल ऑन योर प्राइस एंड लाइक बजट एंड देन डिसाइड विच वन यू वांट टू गो फॉर। मैं शहूर एलेक्सर से काफी इंप्रेस, एंड ये सेंट प्रोफाइल मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब मैं इसको ना ऑल ईयर अराउंड डे टाइम में आप इंजॉय कर सकते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ विच सीजन यू आर इन। एंड समर गुरमॉन्ड्स में तो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट गुरमॉन्ड सेंट्स टू गो फॉर। तो ये था शहूर एलेक्सर फ्रॉम अल अब्जार। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वन विच इज हिरफा। हिरफा का बॉक्स कुछ इस तरीके का दिखता है। इट हैज व्हाइट, ब्लैक एंड गोल्डन डिटेल्स, साइड में बहुत ब्यूटीफुल ब्लैक पैटर्न। इसको तो मैं काट के बुक मार्क बनाने वाली हूँ बिकॉज आई लव दिस पैटर्न। पीछे की तरफ प्रोडक्ट के डिटेल्स, एंड दिस इज हाउ द ओवरऑल बॉक्स इज, एंड ओपन करने पर दिस इज हाउ इट इज सिटिंग इनसाइड। ये बॉटल भी आपने पक्का देखी होगी बिकॉज इंटरनेट पे बहुत सारे परफ्यूम रिव्यूअर्स आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। सो दिस इज हाउ दिस बॉटल लुक्स लाइक। हिरफा एक बहुत ही एजी काइंड ऑफ बॉटल है। इसमें है ये ऐसे एजी पैटर्न भी बना हुआ है, पतली बॉटल है, मोटी नहीं है, थोड़ी सी चौड़ी सी है, एंड बहुत यूनिक दिखती है बिकॉज इट हैज दिस ट्रांसपेरेंट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन गोइंग ऑन इवन ऑन द कैप। तो ओवरऑल इसकी भी वाइब बहुत अच्छी लगी, थोड़ी सी गॉथिक वाइब है इसकी, एंड इसका एटोमाइजर ब्लैक है एंड बहुत अच्छे से स्प्रे करता है ये प्रोडक्ट एज यू सी हियर। एंड दिस वन इज योर टेक और इंस्पायर्ड वर्जन फ्रॉम बर्बरी गॉडेस। नाउ बर्बरी गॉडेस का एक और बहुत फेमस ड्यूप अवेलेबल है, अंगम फ्रॉम लताफा। तो एक और कंपैरिजन करेंगे इन दोनों के बीच में। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन फर्स्ट। सो हिरफा की पैकेजिंग एंड ऑल तो आपने देखी ली। इसका भी प्राइस पॉइंट इज 3599 एंड इट्स ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्काउंट एट 2099 रुपीज, एंड दिस इज 100 ml बॉटल। हिरफा का जो सेंट प्रोफाइल है वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। दैट इज लाइक अ एरोमेटिक फ्रेश लैवेंडर बेस्ड heavy fragrance with lots of vanilla and sweetness to it. So it's aromatic, but it is sweet. It is sort of spicy, but not too spicy. And it is kind of very balanced sort of a fragrance, which makes it a good, fresh, aromatic, sweet fragrance. Also makes it unisex because it's not too sweet ki matlab men can easily rock this one as well as women. So it's a very balanced unisex fragrance is what I feel. Now this smells very rich, like old money. Like somebody whose ancestors have blessed them and they have a lot of hereditary money, so it literally feels like old money to me. It's very rich, very sophisticated, very put together, very elegant kind of a fragrance, something again that you can wear all year around. So this is the scent profile for Hirfa. Now Burberry Goddess का जो scent profile है उसमें differences हिरफा के साथ ये है कि Burberry Goddess में vanilla काफ़ी strong है हर लेयर में। वेनिला एब्सोलूट, वेनिला मिक्सिंग अप विद सम लैवेंडर, अ किक ऑफ जिंजर, थोड़ा सा जैस्मिन, थोड़ा सा मैंडरिन, ये सारे मिलकर गॉडेस बनाते हैं बर्बरी गॉडेस। हिरफा में थोड़े से चेंजेस हैं नोट्स में। तो हिरफा ओपन्स अप विद मैंडरिन, पिंक पेपर एंड पेयर। दिस इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन गॉडेस एंड दिस फ्रेग्रेंस। जिंजर का वो किक हिरफा में नहीं है जो गॉडेस में आता है। हालांकि वो किक फील जरूर होता है बट वो नोट्स में तो प्रेजेंट नहीं है। देन इट हैज सम क्रीमी नोट्स, जैस्मिन एंड लैवेंडर, मस्क, एम्बरग्री एंड वनीला। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये बर्बरी गॉडेस है बट इसमें वो स्पाइसीनेस कम है। एक किक तो आपको जरूर मिल रही है, एरोमेटिक किक जरूर मिल रही है, बट वो जिंजर वाला किक इसमें थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा मिसिंग है। तो अगर आपको बर्बरी गॉडेस उस रीजन से पसंद नहीं आया था कि आपको जिंजर टॉलरेट नहीं हो रहा था, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर, इवन इफ यू कंपेयर इट विद अंगम, क्योंकि अंगम में जिंजर का किक बहुत सॉलिड आता है। नाउ अंगम और इसमें नोट्स के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस जरूर हैं। इसमें एक एडेड नोट ऑफ जिंजर है, पेयर इसमें नहीं है, प्लस इसमें थोड़े से और पाउडरी नोट्स है। मतलब इसमें थोड़ा सा प्रलाइन है जिसकी वजह से एक स्वीटनेस ज्यादा आती है, और इसमें ककाओ का नोट है जिसकी वजह से एक पाउडरी फील आता है। बिटवीन अंगम एंड हिरफा
यू हैव टू टेक अ कॉल कि आपको कितना एरोमेटिक किक आपके फ्रेग्रेंस में चाहिए। अगर आपको ज़्यादा एरोमेटिक किक चाहिए तो आप अंगम की तरफ जाओगे, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा यूनिसेक्स बर्बरी गॉडेस चाहिए जिसमें थोड़ा सा स्वीटनेस कम है और जिंजर का स्पाइसीनेस नहीं है, लेकिन लैवेंडर और वेनिला और क्रीमीनेस उतना ही प्रेजेंट है, तो आपको हिरफा की तरफ जाना है। और फिर से प्राइस पॉइंट के बारे में बात करें, अंगम इज एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू हिरफा। ये आपको ऑलमोस्ट 2100 में आ रहा है, एंड मेरा डिस्काउंट कूपन कोड लगा के आपको शायद 2000 तक आ जाएगा। एंड अंगम इज स्टिल इन द रेंज ऑफ 3K, लाइक समवेयर बिटवीन 2500 to 3K। तो प्राइस वाइज अगेन हिरफा इज बेटर, performance wise slightly Angam is better than Hirfa is giving me around 7 hours, Angam is giving me around 8 hours। projection and sillage दोनों का similar है, only for price point and little bit difference in the scent profile is what your choice should be made on। अब हम बात करते हैं थोड़े feminine fragrance के बारे में, which is रानिया। रानिया एक पिंक ब्लश बॉक्स में आता है with golden details and texture made on it। बहुत सुंदर बॉक्स है इसका, बहुत प्रेजेंटेबल है। वैलेंटाइंस वीक पास में आ रहा है, आई थिंक रानिया इज द बेस्ट फ्रेग्रेंस टू गो फॉर। बहुत स्वीट, रोमांटिक, प्रेजेंटेबल, फेमिनाइन, एलिगेंट, क्लासी फ्रेग्रेंस है ये, एंड ऑल्सो बजट वाइज इट इज फाइन। इट इज अंडर 2500, एमआरपी है वो 3799 रुपीज है, एंड सेंटोपिया पे ये ऑलरेडी कुछ डिस्काउंट पे चल रहा है। यू विल गेट दिस अराउंड 2400 रुपीज अभी, और फिर आप एडिशनल डिस्काउंट लगा के थोड़ा और कम कर सकते हो। तो अंडर 2500 अगर आपका बजट है, please select this one. If your girl is very girly and she likes pink and she's like very feminine and very delicate, just go for this one. Rania is the one to go. इसका जो बॉक्स है कुछ इस तरीके से ओपन होता है, like a beautiful pink closet opening, and this is how the bottle is sitting here. बॉटल पे भी बहुत प्यारा टेक्सचर बना हुआ है इसमें, ऐसे सैंड ड्यून्स की तरह का टेक्सचर है इसमें, और गोल्डन एम्बॉस्ड डिटेल्स हैं। मुझे बॉटल बहुत ज़्यादा पसंद आई, एंड रानिया यहाँ पे लिखा हुआ है पिंक में। तो ओवरऑल इट्स अ गॉर्जियस सेंट प्रोफाइल एंड मुझे बहुत पसंद है। नाउ रानिया इज वेरी सिंपल सेंट प्रोफाइल, बट इट इज सुपर गॉर्जियस। जिसको बोलते हैं ना एकदम डेलिकेट ब्यूटी, ये बिल्कुल वो है। एंड ये मेरा वन ऑफ माई फेवरेट फ्रेग्रेंसेस बन चुका है। दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट, ओके। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्वीट वाइट फ्लोरल फ्रेग्रेंस है, सिंपल है, टू द पॉइंट है, बट बहुत ब्यूटीफुल है। इट ओपन्स अप विद सम जेस्टीनेस ऑफ मैंडरिन, देन हैज सम ऑरेंज ब्लॉसम मिक्सिंग अप विद सम वेनिला। इतना ही सिंपल है। आई थिंक यू नो बैकग्राउंड में इसमें बहुत कुछ चल रहा है। आई थिंक इसमें बहुत सारे और नोट्स हैं जो शायद ब्रांड ने रिवील नहीं किए हैं, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल और इतना नुआंस्ड है ये। एंड इसको जब भी मैं लगा के जाती हूँ, गारंटीड कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिलते हैं। People come and tell me you are smelling incredible, you are smelling out of the world good, and some people, my friends especially, they've told, you know, this is what you should smell all the time. मतलब this should be your signature scent is what people have told me. तो you know the drill. This has to be in my collection. तो रानिया एक बहुत ही सुंदर ऑरेंज ब्लॉसम मिक्सिंग वेनिला एंड सम जेस्टीनेस का कॉम्बिनेशन है। इट्स अ काइंड ऑफ लाइक अ फ्रेशी floral sweet sort of a fragrance which does have a clean girl vibe or a clean girl scent to it, but has some sweetness to it. Clean girl vibe में अपन बोलते हैं ना कि थोड़ा sweetness नहीं होनी चाहिए, it's like more freshy florals, but इसमें वो sweetness है, but kind of borderline clean girl vibe देता है ये, ठीक है। And this perfume is inspired version or duping or Pink PP from Valentino's Donna Born in Roma. Pink PP, that's the perfume that this one is kind of inspired from. Easy 10 plus hours with 6 to 7 sprays. Projects the whole day in terms of soft wisp. It's a beautiful fragrance in my opinion. And overall, I just love the vibe of this fragrance. Elegant, classy, sophisticated, office wear, casual wear, summertime wear, daytime wear kind of a fragrance. Super romantic, clean, soft, feminine. It's feminine energy, feminine era in a bottle. Love myself Rania. This is definite repurchase. चारों में से अगर एक परफ्यूम मुझे पिक करना हो पर्सनली, इट विल बी रानिया। इतना पसंद आया मुझे ये। दिस इज अ वूपिंग 20 out of 10. Now the last fragrance that I want to talk about from Al Abzar is Hasa. Now Hasa का बॉक्स कुछ इस तरीके का दिखता है, काफ़ी सॉलिड बॉक्स है इसका, एंड इसकी पैकेजिंग काफ़ी लैविश है। दिस इज हाउ द बॉटल इज सिटिंग हियर। आई एम सॉरी, रिंग लाइट थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेगी और आपको अनॉय करने वाली है, बट आई जस्ट हैड टू शो दिस टू यू कि ये कितना ब्यूटीफुल स्टेज जैसा है, और इसमें ये बॉटल ऐसी बैठी हुई है विद दिस मिरर एंड ऑल। तो बहुत प्यारा प्रेजेंटेशन है। इफ योर गर्ल इज स्लाइटली गॉथिक एंड शी लाइक्स डार्कर शेड्स ऑफ रेड्स, ब्राउन्स, मरून्स, ब्लैक्स, दैट इज हर थिंग, I think this fragrance will complement her personality a lot. So now Hasa ka bottle is also red, black and golden. Beautiful color combination and kind of screams of what the fragrance is about. This is your cherry
cherry, coffee, white floral, sweet kind of a fragrance scent profile. And this is duping or inspired from Black Opium over Red from YSL. ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इसकी MRP इज अराउंड 4000 रुपीज और ये सेंटोपिया पे करीब 2599 रुपीज का। तो दिस इज जस्ट स्लाइटली ओवर 2500, लाइक 2600 में, एंड दिस इज 100 ml बॉटल। सो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू द अदर्स दैट आई हैव शोन यू सो फार। नाउ लेट्स गिव इट अ गुड स्प्रे एंड देन आई विल टेल यू द notes breakdown on this one. Now this one opens with some cherry and mandarin, jasmine, some white florals, orange blossom and green tea. Then it has vanilla, coffee and patchouli. अब इसके जो notes breakdown है ना, ये काफी similar है Black Opium over Red से। थोड़े थोड़े subtle differences हैं। ग्रीन टी की जगह over Red में ब्लैक टी है। थोड़े थोड़े subtle differences है notes में, बट ओवरऑल सेंट प्रोफाइल बिल्कुल सिमिलर आता है। ब्लैक ओपियम ओवर रेड अपने बर्थडे के टाइम पे मॉल में टेस्ट किया था खुद के ऊपर एंड आई वाज रूलिंग ओवर द सेंट प्रोफाइल, बट वो 10,000 रुपीज़ का था, रिलेटिवली न्यू रिलीज था, बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं था, तो आई एंडेड अप नॉट पिकिंग इट। एंड तब से मेरा हंट चल रहा है, नवंबर से हंट चल रहा है कि मुझे ये सेंट प्रोफाइल कहीं ना कहीं से ढूंढ। मुझे फाइनली मैंने अपने हाई एंड परफ्यूम हॉल जो किया था बर्थडे के टाइम पे, मैंने तब भी मेंशन किया था कि अगर आपको किसी को पता हो ब्लैक ओपियम ओवर रेड का अगर आपको ड्यूप मिल रहा हो तो प्लीज लेट मी नो, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर दैट सेंट प्रोफाइल। एंड समबडी मेंशन्ड हसा टू मी कि गो एंड ग्रैब हसा, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर यू गाइज कि इतने अच्छे सजेशन दिए मुझे। फाइनली पिक्ड अप दिस वन एंड येस, इट इज वेरी सिमिलर। दैट चेरी इज ब्रिंगिंग इन अ लॉट ऑफ डिफरेंस, मिक्सिंग अप विद सम कॉफी। वेरी यूनिक सेंट प्रोफाइल। मेरे पास ऐसा एक भी परफ्यूम नहीं है विच स्मेल्स लाइक दिस। इट्स क्रीमी, it's kind of gothic. The coffee is bringing slight hint of powderiness in this fragrance. It's creamy, it is sweet. It's like literally a cherry vanilla flavored coffee, like taking a sip of that coffee. So I love this scent profile. It's super duper sweet, something that you can wear in evening and night time, something that goes really well in romantic dinner dates and kind of makes you feel very, romantic, seductive, kind of like all the attention is on you, lady in red kind of a situation. So I love the scent profile. I love how it feels on me. Now एक चीज आप याद रखो कि इसमें चेरी है जो कि बहुत प्रोमिनेंट नोट है इस फ्रेग्रेंस में। कुछ लोगों पर चेरी फ्रेग्रेंसेस थोड़े से कफ सिरप जैसे आते हैं, ओके। ये वाला चेरी फ्रेग्रेंस अकॉर्डिंग टू मी इज डन राइट। मेरे ऊपर, मुझे, मेरे स्किन पे, मेरे क्लोथ्स पे ये एक कफ सिरप का वाइब नहीं दे रहा है, थैंकफुली। ऑन माई स्किन इट डजंट डू दैट, बट ऑन योर स्किन इट मे डू समथिंग लाइक दैट एंड देन यू विल बी लाइक कड़वी मेडिसिन रेकमेंड कर दिया आपने। सो आई डोंट वांट टू गो देयर इन दैट रेल्म, बिकॉज everybody's skin and clothes, they react differently to perfumes. weather अलग होता है, हमारी स्किन केमिस्ट्री के साथ परफ्यूम ऑयल्स अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो जो मेरे को अच्छा लग रहा है या जो मेरे ऊपर खिल रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि आप पे भी जाए। तो ये सिर्फ मेरा खुद का ओपिनियन है, प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। एंड अगर आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आता है कि चेरी आपके ऊपर नहीं अच्छे से बैठता, आप इस परफ्यूम को स्किप करो। मैं सामने से बोल रही हूँ, दिस इज नॉट अ सेफ ब्लाइंड बाय। हसा इज नॉट अ सेफ ब्लाइंड बाय, ओके। इट इज़ फॉर देम हु लव चैलेंजिंग चेरी फ्रेग्रेंसेस, ओके, लेट्स पुट इट दैट वे। हसा मेरे लिए तो 20 आउट ऑफ 10 है, डिफरेंट सेंट प्रोफाइल है एंड मुझे थोड़े से गॉथिक परफ्यूम्स पर्सनली बहुत पसंद है। सो मुझे बहुत पसंद आया, बट आई विल से दैट इट इज नॉट अ सेफ ब्लाइंड बाय। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। दोज वर 4 रिव्यूज done in one video, all the fragrances that I have from Al Absar. I hope that you enjoyed watching this review and I have done the comparison that you guys were asking for in the haul video. So I've covered those points as well. I hope that you enjoyed watching this video. It was helpful and kind of helps you to make the right decision of which perfume you want to go for, especially when these perfumes have similar scent profiles. So I hope it was helpful. If it was, do hit the like button. That just gives me a pat on the back to keep doing more such videos for you guys. Also, please subscribe to my channel if you are into fragrances, if you love perfumes. Please support my channel, subscribe, hit the bell notification, follow me on Instagram. My Instagram handle is myperfumediaries_. So I hope you find me there and come and say hi. Thank you so much for watching and I'm going to see you very soon in my next video. Bye.